सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़। Hello dear students, welcome to Bright Future School of Studies online classes. Today we will study about function of Indian democracy and it is part 3 of this chapter. Okay, so today we will study about division of administrative powers. In previous videos we have discussed about federal characteristics of federal form of government. Now we will discuss division of administrative powers. You know very well that there is a federal form of government in India, clear? And under this federal form of government, the powers of central and state governments are divided in our constitution and well defined in our constitution. Clear? So let's start. Administrative powers means prashasanik shaktiyan. Clear? How central government exercise their control over state governments. Clear? It is clearly mentioned in our constitution and we will discuss about it. Okay, the first point is direction to the state governments. Clear? Usually it is one of the powers, administrative power of central government. Central government gives direction to the state governments on the subjects of national interest. Clear? For example, central government can guide the state governments on the subjects of national issue like national security. Clear? Foreign relations with other countries. Clear? Such types of guidelines are come under the directions to the state governments and state governments follow these directions. Clear? So in this manner central government exercise its control over state governments. Clear? Entrust some works of the union subjects to the states. Entrust means होता है सौंपना. Clear? यानी कि यूनियन सब्जेक्ट्स के कुछ काम को सेंट्रल गवर्नमेंट किसको सौंप देती है? स्टेट गवर्नमेंट को सौंप देती है. क्लियर? कैसे सौंपती है? क्लियर? फॉर एग्जांपल एवरी स्टेट हैज अ रेलवे रूट. क्लियर? रेलवे स्टेशंस, रेलवे प्लेटफॉर्म्स. क्लियर? बट द रेलवेज come under the control of central government, but central government can entrust this work of railway security to the states and state manages this work properly according to the guidelines of the central government. Clear? For example, if central government made any treaty with any foreign country, अगर central government ने कोई समझौता किया है, clear? किसी विदेशी कंट्री के साथ में, किसी विदेशी देश के साथ में, क्लियर? तो उस ट्रीटी को फॉलो करना, उस समझौते को फॉलो करना, उस संधि को फॉलो करना स्टेट गवर्नमेंट्स का दायित्व है. इट इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स. एंड क्लियर? ऑल इंडिया सर्विसेज, यू नो वेरी वेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS and IPS. IAS stands for Indian Administrative Services and IPS stands for Indian Police Services. Clear? The procedure of selection in these services is done by UPSC, Union Public Service Commission. It is a body which select the candidates, take their exams and then they are selected in IAS or IPS. Clear? The selection procedure of these exams are decided by central governments. Clear? And if any person of particular state is selected in IAS or IPS, then he needs to work in a particular state. Besides serving in that particular states, time to time they report to the central government and in this manner
सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज देयर कंट्रोल ओवर द स्टेट गवर्नमेंट्स। क्लियर? यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति आईएएस या आईपीएस में सिलेक्ट हुआ है, क्लियर, तो कोई ना कोई किसी ना किसी स्टेट में किसी ना किसी पद पर उसको काम करना होता है। क्लियर? अपनी स्टेट में सर्व करने के साथ साथ, अपने राज्य में सेवा देने के साथ साथ समय समय पर आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट करते हैं। क्लियर? उनकी बात भी मानते हैं। इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर एक्सरसाइज करती है, अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करती है किसके ऊपर? स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल असिस्टेंस। क्लियर? द इनकम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स इज इनसफिशिएंट फॉर रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द स्टेट्स एंड मैनेज ऑल द सर्विसेज। यानी कि जो इनकम होती है स्टेट गवर्नमेंट्स की वो अपर्याप्त होती है राज्य को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए। सरकार की विभिन्न जो योजनाएं रहती है, स्कीम्स रहते हैं, प्रोग्राम्स रहते हैं, उन सभी को रन करने के लिए जो धन स्टेट गवर्नमेंट कमाती है या टैक्सेस से जो इनकम होती है स्टेट गवर्नमेंट्स की वो पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट फंड रिलीज करती है, ग्रांट्स देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को। क्लियर? और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट्स लेना है, यानी कि जो धन है, मनी है, वो प्राप्त करना है, तो उसको हार्मोनियस रिलेशन मेंटेन करने होते हैं। क्लियर? किसके साथ? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तभी सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम उनका जो ग्रांट है वो उनको अवेलेबल करवाएगी। इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करती है किसके ऊपर? स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर। इज दैट क्लियर? सो इट इज फाइनेंशियल असिस्टेंट। फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब होता है आर्थिक मदद। क्लियर? सेंट्रल गवर्नमेंट फंड रिलीज करती है हर स्टेट के लिए टाइम टू टाइम। क्लियर? फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज है, क्लियर, या कोई भी एपिडेमिक है, इन सिचुएशंस में वो मदद किससे मांगती है? क्लियर? फॉर एग्जांपल आपने कुछ दिन पहले ही दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मदद मांगते हुए देखा गया है। तो इन डिफरेंट कंडीशन में या एडवर्स कंडीशंस में जब स्टेट गवर्नमेंट्स के पास फंड अवेलेबल नहीं होता है या फंड कम होता है, ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलीज करके उनकी मदद करती है और इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करती है स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास में कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स होती है, कुछ विशेष शक्तियां होती है। पार्लियामेंट, हम बात कर रहे हैं यूनियन लेजिस्लेचर की। यूनियन लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस को कंबाइनिंगली क्या बोला जाता है? पार्लियामेंट, जिसको हम बोलते हैं संसद। क्लियर? तो पार्लियामेंट की कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स होती है। पार्लियामेंट हैज पावर टू डिवाइड एनी स्टेट इन टू पार्ट्स और इंटीग्रेटिंग टू स्टेट्स और सम पार्ट्स ऑफ इट टू मेक अ न्यू स्टेट। यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी राज्य को दो टुकड़ों में विभाजित कर सकती है। क्लियर? यानी कि अलग अलग राज्य बना सकती है। फॉर एग्जांपल 2000 में मध्य प्रदेश स्टेट को डिवाइड करके टू स्टेट्स बनाई गई, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। क्लियर? वैसे ही उत्तर प्रदेश को डिवाइड करके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दो स्टेट बनाई गई। इन दिस मैनर उसी तरीके से अभी जो लेटेस्ट कुछ दिन पहले ही जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक स्टेट था, क्लियर, उसको डिवाइड करके टू स्टेट्स, टू यूनियन टेरिटरीज बनाए गए, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। क्लियर? उसी प्रकार आंध्र प्रदेश को भी तोड़कर डिवाइड करके टू स्टेट्स बनाए गए, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। बिहार को भी डिवाइड करके टू स्टेट्स बनाए गए, बिहार एंड झारखंड। और ये सारे ही डिवीजन, क्लियर, किसके द्वारा किए गए? पार्लियामेंट के द्वारा। क्लियर? किसके द्वारा? किसके पास पावर्स होती है? किसी भी स्टेट्स को तोड़कर डिवाइड करके न्यू स्टेट्स बनाना। और वहीं अगर हम इंटीग्रेट करने की बात करें तो अभी आपको याद हो टू यूनियन टेरिटरीज जो कि सेपरेट थे,
दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली दोनों को इंटीग्रेट कर, कंबाइन कर एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जो कि सिर्फ क्या होगा, अब एक पहले दोनों सेपरेट थे और उसका नाम क्या होगा, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। क्लियर? तो इस तरीके से पार्लियामेंट के पास पावर्स होती है कि वो किसी भी स्टेट्स को डिवाइड करके टू डिफरेंट स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज बना सकती है, या किसी भी स्टेट्स को कंबाइन करके एक न्यू स्टेट बना सकती है, या दो स्टेट्स के कुछ पार्ट को कंबाइन करके एक न्यू स्टेट बना सकती है। इसके साथ ही पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज में चेंजेस कर सकती है, किसी भी स्टेट के एरिया में चेंजेस कर सकती है, एरिया को रिड्यूस कर सकती है, एरिया को इंक्रीज कर सकती है। सो इट इज अंडर द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। Is that clear? And in parliament both the houses of union legislature are involved, House of the People and Council of States, जिनको हम हिंदी में लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं। Is that clear? Next one is make laws on the subjects mentioned in the state list. If you remember, in previous video we have studied division of powers. In that we studied about union list, state list, concurrent list and residual powers. Clear? मैंने आपको बताया था कि यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर सिर्फ जो यूनियन लेजिस्लेचर है वो लॉ फ्रेम कर सकती है, वहीं स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स है उनमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही लॉ फ्रेम कर सकती है, और वहीं कॉन्करेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स है उन पर दोनों ही सेंट्रल, क्लियर, यानी कि यूनियन लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों ही लॉज फ्रेम कर सकती है। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या जो यूनियन लेजिस्लेचर होती है उसके पास में पावर होती है कि वो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है, उन सब्जेक्ट्स पे भी लॉ फ्रेम कर सकती है, बट इन स्पेसिफिक कंडीशंस। अब वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या होती है? द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन, देखो ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टेट की स्टेट लिस्ट के ऊपर यूनियन लेजिस्लेचर लॉज फ्रेम कर सकती है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस में ही जो यूनियन लेजिस्लेचर है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ फ्रेम कर सकती है। अब वो कंडीशंस क्या है? द फर्स्ट कंडीशन इज दैट व्हेन काउंसिल ऑफ स्टेट्स declares a subject of state list as a subject of national importance। जब राज्यसभा, यूनियन लेजिस्लेचर का एक हाउस होता है राज्यसभा जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, जब काउंसिल ऑफ स्टेट्स ये डिक्लेयर कर दे और ये रिजोल्यूशन पास कर दे कि किसी भी स्टेट लिस्ट में मेंशन कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, यानी कि राष्ट्र हित का सब्जेक्ट है, इस सिचुएशन में सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी कि यूनियन लेजिस्लेचर के पास में वो पावर्स आ जाती है कि वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, जिस सब्जेक्ट को काउंसिल ऑफ स्टेट्स ने नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, उस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ फ्रेम कर सकती है। क्लियर? सेकेंड कंडीशन आती है जब किसी पर्टिकुलर स्टेट में या पूरी कंट्री में प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर, इमरजेंसी की सिचुएशन में जितने भी सब्जेक्ट्स है, चाहे वो यूनियन लिस्ट में हो, चाहे स्टेट लिस्ट में हो या चाहे कॉन्करेंट लिस्ट में हो, सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ फ्रेम करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको होता है? यूनियन लेजिस्लेचर, यानी कि हमारी पार्लियामेंट। क्लियर? कब, किस सिचुएशन में? जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करे, उस सिचुएशन में सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ फ्रेम करने का या लॉ फ्रेम करने की जो पावर है वो किसके पास आ जाती है? पार्लियामेंट यानी कि यूनियन लेजिस्लेचर के पास। क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन है जब किसी पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल डिक्लेयर किया जाता है तब उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की सारी पावर्स ट्रांसफर हो जाती है पार्लियामेंट, और ऐसी सिचुएशन में जो पार्लियामेंट है वो उस पर्टिकुलर स्टेट की स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ फ्रेम कर सकती है। क्लियर? फॉर एग्जांपल क्या हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में? यही सिचुएशन क्रिएट हुई थी
जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल डिक्लेयर था। इस वजह से उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कहां ट्रांसफर हो गई? पार्लियामेंट के पास ट्रांसफर हो गई और पार्लियामेंट ने उस स्टेट की स्टेट लिस्ट में मेंशन सब्जेक्ट के ऊपर लॉ फ्रेम करके उस स्टेट को क्या बना दिया? यूनियन टेरिटरी बना दिया और यूनियन टेरिटरी बनाने के साथ ही उसको 2 पार्ट में डिवाइड भी कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इज दैट क्लियर? और लास्ट कंडीशन कि जब स्टेट लिस्ट में मेंशन किसी सब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रल लेजिस्लेचर लॉ फ्रेम कर सकती है, वो कंडीशन है लास्ट कंडीशन। जब स्टेट लिस्ट में मेंशन किसी सब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रल लेजिस्लेचर लॉ फ्रेम कर सकती है, पार्लियामेंट लॉ फ्रेम कर सकती है, वो लास्ट कंडीशन है। जब किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में ये रिजोल्यूशन पास कर दिया जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ इनेक्ट करना चाहिए, लॉ फ्रेम करना चाहिए, तब सेंट्रल लेजिस्लेचर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लॉ फ्रेम कर सकती है। क्लियर? सो दीज आर द 4 कंडीशंस व्हेन सेंट्रल लेजिस्लेचर और यूनियन लेजिस्लेचर और आवर पार्लियामेंट कैन frame laws on the subject mentioned in the state list. Clear? कौन-कौन सी 4 conditions है? One more time I am repeating it. Keep it in your mind. The first condition, when Council of States declares a subject of state list as a subject of national interest. Clear? Second condition, when President declares emergency in the country. Third condition, when there is a president rule in particular state. In this situation, all administrative powers of that particular states are transferred to the parliament. And the last condition, when the legislative assembly of a particular state, clear, pass a resolution that central legislature should enact a law on this particular subject. Clear? So these are the 4 conditions, and it is the division of administrative powers. और ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का डिवीजन इसलिए किया गया है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स है, लेकिन हमारी कंट्री में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इट मींस देयर आर ड्यूल गवर्नमेंट्स, और ऐसी सिचुएशन में डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। तो उन डिस्प्यूट्स को अराइज न होने देने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर सके स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग वर्क करे। इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई।